آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے جس میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اتروڑ کی وادی کے بارے میں۔ یہاں کے حسین مناظر میں کھو کر سیاح خود کو پرستان میں محسوس کرتا ہے۔ شام کو جب سورج ڈھلنے لگتا ہے اور اس کی کرنیں سنہری مائل ہو جاتی ہیں تو آسمان پر کوسوں قزاق کے رنگ بکھر جاتے ہیں۔ پاکستان کا شمال ان گنت سحر انگیز مناظر والی وادیوں کا گلدستہ ہے۔ گلگت، کشمیر، چترال اور سوات کے خطے حسین اور دلکش تفریح گاہوں سے مزین ہیں۔ وادی اتروڑ اور گبرال خوبصورت مناظر اور حسین و دلکشی کی وجہ سے سوات کی وادی کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ سوات کا خطہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ ڈویژن میں واقع ہے، اپنی ان گنت وادیوں کی خوبصورتی اور رانائیوں کی وجہ سے ایشیا کا سوئٹزرلینڈ جبکہ اس کا ایک علاقہ مئے گلفام کہلاتا ہے، جہاں سے گبرال، اتروڑ، شاہی باغ، لوئے پنڈیال، کالام بانڈا، دیسان، بٹل اور گل آباد کی جادو نگری کی طرف جانے کے لیے راستے نکلتے ہیں۔ کالام کی وادی کو سید ضمیر جعفری نے مئے گلفام کا خطاب دے کر اس کے فطری حسن کی عکاسی کی ہے۔ یہ علاقہ دریائے سوات کے کنارے قدرتی مناظر کے لحاظ سے ارضی جنت بھی کہلاتا ہے۔ یہاں دیو مالائی قصے کہانی والی پر اسرار جھیلیں ہیں۔ آبشار، پہاڑی جھرنے، دریائے سوات سے شاخوں کی صورت میں نکلے ہوئے ندی نالے، سرسبز کھیتوں کے درمیان ترتیب سے لگے ہوئے پودوں میں خوش رنگ اور مہکتے پھول، اور پہاڑوں پر برف کی دبیز تہیں جمی ہوئی نظر آتی ہیں۔ منکیال پہاڑ کی 18,750 فٹ بلندی، چوٹی پر طلوع و غروب آفتاب کے مناظر انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے سیاح راولپنڈی سے یہاں تک سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچتے ہیں۔ کالام تک پہنچنے کے لیے بحرین کے دو دریا کے بس اڈے سے 30 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، جو ناہموار کچے اور پتھریلے پہاڑی راستے کی وجہ سے 2 سے 2.5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ اتروڑ، گبرال اور دیگر وادیوں کی تفریح کے لیے جانے والے سیاح چند روز کالام کی وادی کے محصور کن قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اس کے بازار میں ضرورت کی تقریباً تمام اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ دریا کے کنارے اور سطح آب پر بنے ہوئے چارپائی ریستورانوں میں سیاحوں کو چپلی کباب اور پشاوری کڑھائی کھانے میں خاصا لطف آتا ہے۔ وادی کالام 2 حصوں پر مشتمل ہے، زیریں اور بالائی وادی۔ کالام زیریں کا علاقہ دریائے سوات کے دائیں طرف واقع ہے، جہاں کالام کا قدیم گاؤں آباد ہے۔ کچے پکے مکانات جن میں لکڑی کا کام نمایاں نظر آتا ہے، قدیم و جدید کا حسین امتزاج پیش کرتے ہیں۔ چند روز یہاں گزارنے کے بعد سیاح اگلے مستقر کا رخ کرتے ہیں۔ کالام خاص سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر گھنے جنگلات کا وسیع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے بلند و بالا درختوں کے پتوں کے درمیان میں سورج کی کرنیں بامشکل چھن چھن کر نظر آتی ہیں۔ ان جنگلات میں شاہ بلوط، صنوبر اور اخروٹ کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ انہیں بنٹر کے جنگلات کہا جاتا ہے۔ بحرین سے آنے والی سڑک یہاں سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ مذکورہ وادی کا شمار ملک کے پرفضا اور صحت افزا مقام میں ہوتا ہے۔
यहाँ हर तरफ कुदरत के हसीन रंग नजर आते हैं। पहाड़ी बुलंदी से गिरती हुई आबशारें जलतरंग बिछाती हुई महसूस होती हैं। हर तरफ मखमली घास बिछी हुई है, जिसके अतराफ दूर तक हरे भरे पौधों का रंगारंग और खुशबू बिखेरते हुए फूल सजे हुए नजर आते हैं। पहाड़ी बुलंदियों पर तह दर तह खेत और उनके साथ सुर्ख छतों वाली सीढ़ी नुमा मकानात सवात के दीगर पहाड़ी वादियों की तरह यहाँ भी इनफरादी अंदाज में मौजूद हैं। शाम को जब सूरज ढलने लगता है और इसकी किरणें सुनहरी माइल हो जाती हैं, तो आसमान पर कोजो कजा के रंग बिखरे हुए महसूस होते हैं। रात को जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, तो तारों की झिलमिलाती रोशनी ठंडक बिखेरती इंतहाई भली मालूम होती है। यहाँ की सुबह और भी हसीन होती है। बर्फपोश चोटियों की तरफ से आने वाली खनक हवा में फूलों की महक घुली होती है, जो दिलो दिमाग को तरोताजा करती है। दूर तक फैले हुए सरसब्ज मैदान, रंग बिरंगे फूल, लहलहाते खेत और बागात, दरख्तों पर उड़ने वाले परिंदों की आवाजें इंतहाई भली मालूम होती हैं। इन मनाजिर में सिहा इतना खो जाता है कि वो खुद को परियों के देश में महसूस करता है। अतरोड़ के गर्दो नवा में कई हसीन गांव वाक़या हैं, जिनमें जब्बा, शाहीबाग, गुलाबाद और गवाई बेला सैरो तफरी के लिए आने वालों के लिए पुरकशिश हैसियत रखते हैं। इन मकामात तक कच्ची सड़क पर जीप और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचा जा सकता है, जबकि गुलआबाद, जो एक हसीन आबशार की वजह से मशहूर है, वहां पहाड़ी रास्ते पर ट्रैकिंग करते हुए पहुंचना मुमकिन है। अतरोड़ और गबराल की आबादी कोहिस्तानी बाशिंदों पर मुश्तमिल है, ताहम यहाँ गुज्जर कौम के अफराद की बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। कोहिस्तानी लोग दो बड़े कबाइल में तकसीम हैं, दरे खैल और नरी। अतरोड़ और गबराल के इलाकों में मज़कूरा दोनों कबाइल के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। इनकी बहादुरी, जज्बे ईसार और मिलनसारी ज़रबे मिसाल है। ये लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं और मेहमानों की ताज़ीम और तकरीम अपने फराइज का हिस्सा समझते हैं। अतरोड़ में एक कदीम मस्जिद की 2 मंजिला इमारत सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। इसकी दूसरी मंजिल की तामीर में देवदार और अखरोट की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर इंतहाई महारत से कंदाकारी की गई है। इस खूबसूरत शाहकार की तख्लीक के लिए सवात के कारीगरों के अलावा अफगानिस्तान से भी लकड़ी पर काम करने वाले माहिरीन बुलाए गए थे। अतरोड़ की वादी के हुस्न और दिल फरेब मनाजिर से महजूज होने के लिए यहाँ कम अज कम 1 हफ्ते का कयाम लाजमी है। अतरोड़ से मुल्हिका गबराल की वादी भी हसीनो जमाल में यकता है, जो सतह समंदर से 7500 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। लेकिन वहाँ अतरोड़ की तरह सियाहती सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। रिहाइश के लिए महकमा जंगलात का एक छोटा सा रेस्ट हाउस है, जिसमें पेशगी बुकिंग कराना पड़ती है। वादी गबराल में कैंपिंग के लिए बेहतरीन साइट्स मौजूद हैं, इसलिए ज्यादातर सियाह अपने साथ खैमे, अशिया और गैस के चूल्हे, गरम बिस्तर और कपड़े साथ लेकर आते हैं। यहाँ के खालिस कुदरती माहौल से लुत्फानंदोज होते हैं। वादी के एतराफ में बुलंदो बाड़ा पहाड़ हाइकिंग और ट्रैकिंग के शायकीन के लिए पसंदीदा मकामात हैं। पहाड़ों की बुलंदी और उनके साथ मुस्ता मैदानों में लकड़ी के खूबसूरत मकानात नजर आते हैं।
अतरोड़ और गबराल को जुड़वा वादियां भी कहा जाता है। इन दोनों में मजमूई आबादी तकरीबन 30,000 नफूस पर मुश्तमिल है। सर्दी के मौसम में यहाँ मौसम सख्त सर्द होता है। अक्टूबर से नवंबर के दौरान यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है कि कालाम से अतरोड़ और गबराल जाने वाले रास्ते मसदूद हो जाते हैं। अतरोड़ और गबराल की वादियों की सैर के लिए मई से सितंबर तक मौसम मौजूद होता है। जब मैदानी इलाकों में गर्म होता है, यहाँ हल्की हल्की खनकी होती है जो इंतहाई खुशगवार मालूम होती है। मज़कूरा वादी की खुशगवार फिजा सियाहों को यहाँ खींच लाती है और यहाँ के मशहूर कुन माहौल में इस कदर गुम हो जाते हैं कि शहरों की याद भुला बैठते हैं।